Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So welcome back once again. We are almost coming to the end of this particular chapter, जिसका नाम obviously ऊपर लिखा गया है, which is Introduction to Partnership and Partnership Final Accounts. Okay, last एक दो lectures में हमने हमारा ध्यान जो दो टाइप के मेथड होते हैं, okay, बोलने से बेहतर है बता दूँ आपको. So हमने सीखा है, मैंने सिखाया है, there is something called as fixed capital method and there is something called as fluctuating. एक क्वेश्चन के अंदर आपको ये वाले प्रॉब्लम में एक पार्टनर का नाम है मितेश, दूसरे का नाम है मंगेश. ओके, बट अगर आप लाइबिलिटी साइड पे नज़र मारो, you will see capital account and a little bit later you will see current account. So question, when you only have capital account, तो there is nothing complicated. तो capital account बनाया, उसमें पूरी स्टोरी लिख दी पार्टनर्स की. बट जब दो अकाउंट है मेरे पास, तो दो अकाउंट तो हम बनाने से रहे, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग इट. फर्स्टली ये याद रखो, व्हेन यू हैव बोथ द अकाउंट्स गिवन टुगेदर, कैपिटल और करंट, आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हो? आप फॉलो कर रहे हो फिक्स्ड कैपिटल मेथड. सो अगेन दिस इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पर सिर्फ कैपिटल बैलेंस होता है, करंट अकाउंट नहीं होता. सो वेरी सिंपल, यू प्रिपेयर अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस, ये जो मेरे पीछे है, और सम के एंड में क्लोजिंग बैलेंस, वो कभी सेम नहीं होता. इसके लिए उसको नाम देते हैं फ्लक्चुएटिंग, ये वाला नाम. बट व्हेन यू हैव अ करंट अकाउंट, ऑटोमेटिकली कैपिटल इज ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट, टू दी लाइबिलिटी साइड, तो उसका अकाउंट नहीं बनता. देन पार्टनर्स अगर कुछ ड्राइंग्स करे, पार्टनर का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट, वो कहाँ पे लिखने का, उसके लिए वी प्रिपेयर अ न्यू अकाउंट, द नेम ऑफ विच इज करंट अकाउंट. सो दिस, इस वाले पॉसिबिलिटी को क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. सो इन द चैप्टर मैंने मेरी कोशिश की कि मैं पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पढ़ाऊँ, उसमें करंट अकाउंट आपको दिखा ही नहीं. एंड टुडे, रादर 2 lectures बैक से शुरुआत की करंट अकाउंट की.
Okay, now I am assuming, thinking that the trading account, the following profit and loss account only with the Banno formula. There is no Danno formula. And also the current account, not capital, and the balance sheet is ready. Right now, during the question, अगर कुछ नया आता है, I'll explain it to you, otherwise तो हमको ये solve तो करना ही है. So अभी के लिए मार्किंग्स हम लोग करते हैं. सो अगेन क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, लेक्चर. कभी कभी तो कम होता है, और अच्छी बात है, अपना काम कम हो जाता है. ओके, मार्किंग, डेबिट साइड अलग है, क्रेडिट साइड अलग है, विच इज गुड. एक साथ में रहता है ना तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है. सो स्टॉक, ये तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा. बिल्डिंग एसेट, कैरेज कुछ नहीं कहा तो कैरेज इनवर्ड, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट. फैक्ट्री का इंश्योरेंस कुछ नहीं कहा तो इंश्योरेंस ऑफिस का होता है. फैक्ट्री का बोला तो क्यों जिद करने का, फैक्ट्री का खर्चा रहेगा. ट्रेडिंग, अब पोस्टेज ऑफिस का होता है, P&L. बिल रिसीवेबल एसेट, डेटर एसेट. रिटर्न इनवर्ड, ये सेल्स रिटर्न है, हमने कस्टमर को बेचा, उसको पसंद नहीं आया, उसने इनवर्ड दिया, सो इट इज ट्रेडिंग अकाउंट. परचेज ट्रेडिंग, ऑडिट का काम चेकिंग ऑफ अकाउंट्स ऑफिस में होता है, दफ्तर में होता है, देखो P&L. यूज टूल्स, अगर आप कारपेंटर हो, प्लम्बर हो, यू रिक्वायर सर्टन औजार, टूल्स. ओके, इनफैक्ट इवन अ डॉक्टर रिक्वायर सर्टन टूल्स ताकि उनका काम पूरा हो सके. तो वो बेसिकली वो मल्टीपल ईयर्स के लिए यूज करते हैं, एक साल नहीं, हर साल में नया नया खरीदने का ऐसा नहीं होता. एक बार खरीद लिया तो 10, 15, 20 साल तो चल ही जाता है. ओके, सो एसेट है. मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग वेयर डू यू डू इट, फैक्ट्री में, और कहाँ पे करूँगा मैं, ऑफिस में थोड़ी करूँगा मैन्युफैक्चर. सो देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फैक्ट्री का खर्चा. हाँ, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस का खर्चा है, P&L. जनरल एक्सपेंस हमेशा P&L. हाँ, अगर आपके पास ट्रेड एक्सपेंस आया, देन बिकॉज ऑफ जनरल एक्सपेंस वो वाला ट्रेड ट्रेडिंग. सो कंफ्यूजन इज नॉट अबाउट सर जनरल का क्या, वो तो हमेशा P&L. कंफ्यूजन शुड बी सर ट्रेड एक्सपेंस को कहाँ पे लिखो. जनरल है सब में तो ट्रेड जाएगा, अगर आया तो ट्रेडिंग. ओके, अगर नहीं आया तो चिंता करने की बात नहीं. जनरल P&L, एक्सपोर्ट टू प्रोडक्शन की बात करते हो, इसके लिए P&L. कैश इन हैंड एंड एट बैंक एसेट. कन्वेयंस का मतलब ट्रांसपोर्ट. ओके, मैनेजर, क्लर्क, सुपरवाइजर एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है, सो P&L. फर्नीचर एसेट, सैलरी, रेंट, रेट्स, ये सब ऑफिस का खर्चा है, P&L. ड्रॉइंग्स इन टूडेज प्रॉब्लम, we normally write partners capital, but obviously there is no capital account today, current account है तो partners current account में लिख लेते हैं. so everything, हर वो चीज जो कैपिटल में पहले होती थी अभी करंट अकाउंट में हो जाएगा. बाकी पार्टनर के अकाउंट के अंदर का काम बदला नहीं है, इट इज द सेम. क्रेडिट साइड, क्रेडिटर लाइबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग, कैपिटल. Today in this problem is liability side. Outstanding liability, bill payable liability. Return outward is purchase return, and the special thing is current account. इसके लिए there is a special account which we call as partners current. So right now trial balance में there is no hidden adjustment, so let's not worry about it. होता तो थोड़ी चिंता करनी पड़ती कि प्लस करूँ, माइनस करूँ, क्या करूँ. ओके, एडजस्टमेंट्स में पीछे आई डू वन थिंग, थोड़ा शिफ्ट हो जाता हूँ. सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट डू आई सी, मितेश एंड मंगेश शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1. ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, जहाँ पे मैंने आपको इनका तस्वीर दिखाया था वो ग्रेट, मैं ही इनको ढक रहा हूँ.
हाँ, सो यहाँ पे जो इनका रेशो आता है, ओके, व्हाट इज दैट, 3:1. सो लेटर ऑन, अभी नहीं, 3/4, 1/4 काम आएगा हमको. ओके फाइन. अब जाते हैं क्वेश्चन में. नेक्स्ट, partners are entitled to get commission at 1% each on gross profit. तो again for the last 2 lectures we have been doing this adjustment, जहाँ पे gross profit ढूंढने के बाद में we have to calculate the commission. So partner का commission निर्भर है, depends upon the gross profit. तो ट्रेडिंग अकाउंट को पहले तुम खत्म करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढोगे, देन यू विल कैलकुलेट दिस कमीशन. ओके, नेक्स्ट वन, द कुछ मार्किंग नहीं करना, यू डोंट हैव टू मार्क. द क्लोजिंग स्टॉक, कुछ मार्किंग नहीं करना. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फी एंड कैरेज. अगेन इफ इट लुक्स थोड़ा अजीब कि सर तुम इधर देख रहा है, मार्किंग उधर हो रहा है, बिकॉज आई एम लुकिंग एट अ मॉनिटर जहाँ पे ये क्वेश्चन मुझको दिख रहा है. ओके, अदरवाइज मेरे सामने जो है मैं वो उस मॉनिटर को नहीं देख सकता हूँ. हाँ, तो उसके नीचे था बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500. देयर इज सम गड़बड़ विथ बिल्डिंग, उसको मार्क कर लेते हैं. उसके नीचे है फर्नीचर्स डेप्रिशिएट, वो तो सिंपल है, फर्नीचर को मार्क कर लो. प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 2.5%. वी हैव टू कैलकुलेट कि ये 2.5% आता कितना है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम. करेंगे नंतर, अभी वेट करो. गुड्स ऑफ 900 वर टेकन बाय मंगेश. हु इज मंगेश? पार्टनर. फॉर व्हाट? पर्सनल यूज, अपने बच्चों को खिलाने, अपने बीवी को खिलाने, ओके, अपने मम्मी पापा को खिलाने. दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स. इसके लिए कोई मार्किंग नहीं होता. सो डोंट से सर ये ड्राइंग्स को मार्क करना है. नहीं नहीं नहीं, ये ड्राइंग्स है और देयर इज एक और ड्राइंग, एडिशनल ड्राइंग, कुछ मार्क करने की जरूरत नहीं है. एंड लास्टली, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट. बैड डेट तो डेटर करता है, ओके, तो एक स्टार करो डेटर को. एंड मेंटेन RDD. अब नाउ दिस इज, तो चैप्टर इज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है. सो दिस RDD अभी तक तो समझ में आ जाना चाहिए था, विच इज न्यू RDD. अगेन डेटर को मार्क. सो लीव 3 लाइन्स फॉर डेटर्स. बाकी आई पर्सनली डोंट थिंक that this is a difficult question as such. It is just a question which is in the series of capital and current account. Okay, it's a good question, it's a very reasonable question. इसी के आसपास 19-20 होके एग्जाम का भी क्वेश्चन आता ही है. राइट नाउ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सो आई एम अज्यूमिंग, बिकॉज दिस टेक्निकली इज नॉट अ लाइव लेक्चर एज सच, कि आपका पूरा तैयारी हो चुका है, या आप पॉज कर लोगे और तैयारी कर लोगे, देन अनपॉज करके गाड़ी स्टार्ट करोगे. सो स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर 25,000. नेक्स्ट, बिल्डिंग, एसेट, एसेट में लिख लो. अगेन थोड़ा ऊपर, इतना ऊपर नहीं, 48,500. 48,500. कैरेज, कैरेज इनवर्ड, कुछ नहीं कहा तो इनवर्ड, तो डेबिट साइड पे. सो टू कैरेज 1780. देयर इज अ स्टार मार्किंग टू लीव 1 लाइन. नेक्स्ट, फैक्ट्री का इंश्योरेंस, फैक्ट्री में लिख लो क्योंकि वो फैक्ट्री का खर्चा है. आउटर कॉलम में 2700, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, देयर इज नो एडजस्टमेंट. आप पोस्टेज ऑफिस में लिख लो. सो एकदम ऊपर, द P&L अकाउंट इन दिस प्रॉब्लम इज लिटिल लेंदी, थोड़ा लंबा है, तो देर आर अ लॉट मोर आइटम्स टू बी रिटन इन दिस. ओके, सो क्वेश्चन इज सिंपल बट थोड़ा लंबा है, विच इज गुड, अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है. नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल एसेट. हाँ, बाय द टाइम आई चेंज माई सीन्स 13,700. ओके, आपको नज़र नहीं आता बट मुझको मेरे सामने सीन्स चेंज करने पड़ते हैं, बट दैट्स गुड. वो टाइम के वक्त आपको भी टाइम मिल जाता है लिख लेने का. नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स, 2 स्टार, 3 लाइन, 52,200.
नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड, वी कॉल इट सेल्स रिटर्न, एक्चुअली आई कॉल इट बोथ ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. 1600 परचेसेस, इनवर्ड ही लिखना है ताकि माइनस करके बाहर लिखे. 68,900 परचेसेस. देन कम्स ऑडिट फीस, P&L में लिख लेते हैं 1,800. लीव वन लाइन. दैट इज द रीजन मैंने आई टोल्ड दिस 1 lecture 2 lectures बैक. प्लानिंग, when you did all the markings in this, आपने जब आपके टेक्स्ट बुक में मार्किंग किया, दैट्स प्लानिंग. बिकॉज अगर प्लानिंग करोगे अच्छे से तो ही उसके आगे के जो काम है, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, ये OCM में आपने पढ़ा होगा. ओके, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, वो सब सही से हो सकता है. तो प्लानिंग हैज़ टू बी वेरी वेरी, इट्स अ क्रूशियल पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, लूज टूल्स एसेट है तो एसेट में जाएगा. हाँ, तो जस्ट बिहाइंड में एक इस तरफ एक इस तरफ 32,000. नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, फैक्ट्री में होता है मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ऊपर आपको दिख रहा है 1820. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफिस का है. कभी पावर एंड फ्यूल आता है ना, पावर एंड फ्यूल, देन वो फैक्ट्री का होता है. बिकॉज पावर का मतलब जो मशीन्स इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, जो मशीन्स यूज करते हैं. नेक्स्ट जनरल एक्सपेंसेस, दिस इज नेवर अ कंफ्यूजन. जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये हमेशा ऑफिस. ट्रेड एक्सपेंसेस का कंफ्यूजन रहता है. अगर ये वाले सम में ट्रेड आया देन ट्रेड विल गो टू द ट्रेडिंग अकाउंट. ओके, अगर जनरल नहीं है और मिसलेनियस सन्ड्री नहीं है, देन ट्रेड विल कम हियर इन ट्रेडिंग अकाउंट. उसके लिए आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ वर्किंग नोट एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, क्यों, क्या, कैसे. एक्सपोर्ट ड्यूटी P&L में आएगा. लाइक आई सेड, देयर इज अ लॉट ऑफ लिस्ट, काफ़ी लंबा और बहुत लिस्ट बाकी भी है. 1,000 एक्सपोर्ट ड्यूटी. कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, इस तरफ और इस तरफ. सो नेम अमाउंट, नेम अमाउंट 29,000. कभी कभी एकदम एकदम परफेक्टली आता है, जहाँ पे मैं उंगली रखता हूँ वहीं पे अच्छा लगता है. ओके, लुक्स गुड के द प्लानिंग वाज गुड, बट ऑब्वियसली आई डोंट हैव एक्सेस टू द एंटायर बोर्ड, तो कभी कभी दूर हो जाता है. नेक्स्ट कन्वेयंस. कन्वेयंस जो आदमी होते हैं. ओके, लाइक कभी गांव जाओगे ना तो मतलब यू फाइंड अ लॉट ऑफ कैटल, भेड़, बकरी, गाय, बैल. ओके, उनको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है. सो यू कैन इवन हैव एनिमल्स, जानवर जो ट्रैवल करते हैं. ओके, पशु पक्षी जो ट्रैवल करते हैं. एंड पीपल, तो कन्वेयंस नॉर्मली पीपल का ट्रैवलिंग है. 4,100. फर्नीचर एसेट इधर उधर आएगा. फर्नीचर, हाँ, तो जस्ट बिहाइंड मी, आई नो इट्स नॉट विजिबल, 64,000. ओके, लीव अ लाइन, मोस्ट प्रोबेबली देयर इज अ डेप्रिसिएशन, उसके लिए लीव अ लाइन. नेक्स्ट सैलरीज, ऑफिस में लिख लो. हियर गोस राइट अबाउट, जो बन्नो फॉर्मूला उसके ऊपर, मेरे पास जगह था तो मैंने लिख लिया 2,000 सैलरीज. नेक्स्ट रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, वो भी ऑफिस का खर्चा है. बोलेगे फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, तो फैक्ट्री में लिख लेगा हम लोग. हमारे पापा का क्या जाता है, जैसा बोलो वैसे लिख लेंगे. 3,700. नेक्स्ट ऑलमोस्ट डेबिट साइड का एंड, ड्रॉइंग्स. नॉर्मली पार्टनर्स कैपिटल, बट टुडे इन दिस प्रॉब्लम वी डोंट हैव कैपिटल. चलेगा, उसका रिप्लेसमेंट है करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के डेबिट में लिख लेते. यस, व्हाई नॉट, एग्जैक्टली वही करना है. 2 ड्रॉइंग्स, 1,200 फॉर मितेश, 2,200 फॉर मंगेश. अगेन सी, आई नो इट्स अबाउ, बट आई एम ऑलवेज लुकिंग एट अ स्क्रीन जहाँ पे ये रिटन स्टाइल में आ रहा है. दिस इज द एंड ऑफ द डेबिट साइड. तो अभी क्रेडिट देख लेते हैं.
obviously credit items will go to the credit side starting with creditors, वो liability है. Leave अराउंड 6 लाइन्स, क्योंकि लाइबिलिटी में कैपिटल आएगा, करंट आएगा, पक्का 6 लाइन्स जाएगा. उसके बाद में ही लिख लेना वट एवर यू वॉन्ट टू एज ए लाइबिलिटी. सन्ड्री क्रेडिटर 38,000. नेक्स्ट सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट मध्ये जाणार, माइनस करके बाहर लिखो, बाहर 1,73,400. ओके, यू कैन से सर मेरे को थोड़ा अलग आया, तो आपका आंसर भी अलग आएगा एंड अनफॉर्चुनेटली मार्क्स नहीं मिलेंगे. कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट. मितेश मंगेश, पार्टनर एनीवन, व्हेन यू हैव करंट अकाउंट तो दिस कैन नॉट गो टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट है ही. देयरफॉर वी थिंक लाइक दिस कि अगर करंट अकाउंट भी है तो कैपिटल सीधे जाएगा लाइबिलिटी, बैलेंस शीट. दैट इज व्हाट आई मीन. समटाइम्स स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड. सर तुम्हें क्या बनाया है, दैट इज द मीनिंग, सिचुएशन बनाया है. ओके, सो गो टू द बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, यहाँ पे लिख लो कैपिटल अकाउंट. मितेश मंगेश और वोटेवर पार्टनर का जो नाम है ये उनका फिक्स्ड कैपिटल है. दिस इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल. 2 लाख टोटल, 2 लाख, 1,50,000. इसमें वो नॉर्मली छेड़खानी, दे डोंट टच, नो नो नो. ओके, 1,50,000 रहने दे, 50,000 रहने दे. ओके, अगर इमरजेंसी आई तो देख लेंगे, तब तक रहने दे, फिक्स्ड. नेक्स्ट, outstanding salary and bill paid, both are liabilities. So on the liability side, outstanding salary, this is not an adjustment क्योंकि ट्रायल बैलेंस में है ना, इसके लिए. सो डोंट से सर सैलरी को क्यों नहीं मार्क किया आपने, ये ट्रायल बैलेंस में है तो एक ही बार लिखना है. ओके, अगर एडजस्टमेंट में आएगा तो फिर 2 बार हम लोग करेंगे. एंड बिल्स पेड 18,000. Next comes return outward, we call it purchase return, तो we will write it and minus करके बाहर डालेंगे. बाकी आपके गणित पे डिपेंड करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे. आंसर सही आता है, गलत आता है. 67,100. नेक्स्ट, current account, we today have prepared a special current account and please notice this is on the credit side. मैनी अ टाइम्स करंट अकाउंट में कभी कभी ना एकदम गूगली आ जाता है, अरे सर वो डेबिट में चला गया, पता ही नहीं चला हमको. नहीं, तुमने ध्यान दिया है. ये देख लो, यहाँ पे सिंपल है, क्रेडिट में ही लिखा है दोनों, तो मैं भी क्रेडिट में ही लिखूंगा. सो राइट अबव यू कैन सी दैट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग करंट अकाउंट 3,000 फॉर मितेश, 2,000 फॉर मंगेश. सो भाई आई वुड से आधी मेहनत हो गई हमारी, बिकॉज हमारा ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया. बट यू शुड नेवर, आई ऑल्सो से दिस, ये भी बोलता हूँ मैं कि कभी इतना खुश मत होना, हो गया आधा काम हो गया. नो. ओके, फाइनल अकाउंट्स कर रहे हो तो जब तक तुमने एडजस्टमेंट नहीं किया और वो भी सही से नहीं किया, तुम्हारा ऐसा कोई खास काम हुआ नहीं है. पहला एडजस्टमेंट, बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम वी डोंट हैव अ हिडन एडजस्टमेंट, तो मतलब ऐसे कोई रहस्य नहीं है छुपा हुआ. फर्स्ट पॉइंट, Mitesh and Mangesh are sharing profit and losses in the ratio of 3:1. तो हमने डिसाइड कर लिया. ओके, आई जस्ट टोल्ड, वो मितेश है, ये मंगेश है, कसं काय भाव. ओके, और उनका रेशियो है 3:1. वो जब नेट प्रॉफिट आएगा ना तब काम आएगा. ओके, नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, पार्टनर्स, नॉट वन पार्टनर, बोथ मितेश मंगेश आर एंटाइटल्ड. मतलब क्या, हक बनता है उनका राइट, हक बनता है टू गेट कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट. आई रिपीट माई सेल्फ. हाँ, सो हाउ डू यू कैलकुलेट दिस? वेल, आपको रुकना है ग्रॉस प्रॉफिट तक, तो ढूंढ नहीं सकते? नहीं, अभी नहीं ढूंढ सकते हो. ये जो अकाउंट है ना ट्रेडिंग, इसमें आता है ग्रॉस प्रॉफिट, बट अभी नहीं आता. देर यू हैव टू फिनिश ऑल दी एडजस्टमेंट्स. इनफैक्ट यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक, एंड देर कैन बी मेनी मोर थिंग्स जो यहाँ पे आएंगे. पहले ख़त्म कर लो ये पूरा अकाउंट, अभी नहीं ख़त्म होगा,
बाद में ही खत्म होगा, बाद में मतलब एडजस्टमेंट नंबर 4, 5, 6, 7 पूरा खत्म करो। राइट नाउ एक काम कर सकते हो, कमीशन जो वर्ड है वो लिख के रखो, कुठे, कहाँ पे? वेल कमीशन क्या है पार्टनर के लिए? इनकम। तो एक काम करो, पार्टनर के खाते में जाओ और उसके क्रेडिट में लिख लो 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट राइट एंड कीप, ओके, ताकि याद रहे yes I have to do 1% commission, that is credit. Where will debit come? P&L account, debit side, to commission on gross profit, Mitesh and Mangesh, that's what I'm writing. Calculation वो तो अभी नहीं कर सकता हूँ, वो जब ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा तो उसका 1% करूँगा मैं। आई रिपीट, वेरी सिंपल, 1%। ओके, देख लेते हैं कितना आएगा। सो अकाउंटेंसी हो गया, अमाउंटिंग, व्हाट इज अमाउंटिंग? अमाउंट का कैलकुलेशन, ओके, हमने किया नहीं है बिकॉज वी डोंट नो 1% ऑफ व्हाट। थर्ड पॉइंट, ग्रॉस सॉरी क्लोजिंग स्टॉक, वेरी सिंपल, ऊपर लिखा है 23,700, तो जस्ट बिहाइंड मी एंड ऑन द लाइबिलिटी साइड, सो जस्ट बिहाइंड मी, इधर क्लोजिंग स्टॉक 23,700, ओके, सो हियर गोस। आई एम गेसिंग आपने वो दोनों लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग म्हणजे प्लस क्या? ऑडिट फीस 400, तो सर्च ऑडिट फीस वो ऊपर है और प्लस करो, यू राइट द शॉर्ट फॉर्म ना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा जगह नहीं रहेगा ना, तो आउटस्टैंडिंग का शॉर्ट फॉर्म लिख लो 200। आंसर, वो आउटस्टैंडिंग नहीं था, आउटस्टैंडिंग वाज 400 एंड द सेम 400 ऑन द लाइबिलिटी साइड, हियर आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400। इन द एडजस्टमेंट देयर आर 2 आइटम्स विच आर आउटस्टैंडिंग, एक तो ये था ऑडिट फीस, द नेक्स्ट इज कैरेज, राइट अबव यू कैन सी कैरेज 600, तो गो टू कैरेज विच इज इन ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें लिख लो, ऐड कर लो, एंड व्हेन यू ऐड इट टू 1780, 2380, 2380, second effect, liability side, so here outstanding carriage inward उसका नाम है, if you write inward तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो भी करेक्ट है 600, ओके, इतना तक तो हमारा गाड़ी पहुंच गया। एडजस्टमेंट 1, एडजस्टमेंट 2 इनकम्प्लीट है बट हो जाएगा, 3 भी हो गया, आई थिंक अभी 4 का टाइम है जी, 4 भी हो गया, क्लोजिंग स्टॉक उसके ऊपर था। सो 5, बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूड एट 46,500, मीनिंग बिल्डिंग की कीमत है 46,500। होल्ड ऑन, अगर आप बोलोगे नहीं सर ये झूठ है, क्यों? सो देखो ऊपर बिल्डिंग का वैल्यू है 48,500, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इट इज 46,500, तो वो जो ऊपर है ना 48,500 वो होगा OLD, ओल्ड वैल्यू, और अभी आपको दिया है न्यू वैल्यू। अगर आप एक गाड़ी खरीदते हो, सोचो 10 लाख में, 5 साल आपने चलाया, फिर आपको बेचना है, कस्टमर सामने से पूछता है कितने में बेचोगे, तो आप बोलोगे देखो मैंने 10 लाख में खरीदा तो मैं 10 लाख में आपको बेचूंगा। डू यू थिंक वो कस्टमर मानेगा? नहीं, ऑब्वियसली उसके यहाँ पे ऐसा बेवकूफ़ का टैग नहीं लिखा है। बोलेगा अरे सर क्या मजाक करते हो, तुमने 5 साल पहले खरीदा था तब 10 लाख था, वो ओल्ड वैल्यू, तो मेरे को नया वैल्यू बता, न्यू वैल्यू। सो सिमिलरली बिल्डिंग का न्यू वैल्यू ऊपर कितना है 46,500। नाउ अगर पुराना था 48,500, नया है 46,500, तो कम हो गया ना वैल्यू, कितना 2,000। क्यों कम हो गया? डेप्रीसिएशन। अरे तुम गाड़ी चलाएगा तो टायर घिसेगा ना, थोड़ा यहाँ पे खरोच आएगा, थोड़ा वहाँ पे स्क्रैच आएगा, थोड़ा यहाँ पे डेंट आएगा, तो वैल्यू तो कम होगा डेप्रीसिएशन की वजह से। सो इट इज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ गिविंग यू डेप्रीसिएशन। तो आई रिपीट, डेप्रीसिएशन 2000 पता चल गया, ओल्ड और न्यू वैल्यू का फर्क, डिफरेंस। हाँ, आई हैव नॉट कंप्लीटेड दिस, बट देन क्योंकि जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, फर्नीचर इज डेप्रीशिएटेड बाय 5%, तो बेसिकली वो भी डेप्रीसिएशन ही है। तो यू कैन गो टू द बैलेंस शीट
एंड जो फर्नीचर है इस तरफ, उसका आप 5% डिप्रिसिएशन कर लो, 3,200, आउटर कॉलम 60,800। तो क्या दोनों बिल्डिंग का भी डिप्रिसिएशन आ गया, फर्नीचर का भी आ गया, सेकेंड इफेक्ट एक साथ में ही दे देते। वो कर सकते, अलग अलग भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा मत होना, तुम्हारा मर्जी। ओके, इतना आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू। देखो भाई, वैसे भी ऊपर जो आपको दिखता है वो भी एक स्टाइल है डेप्रीसिएशन देने का, और ये जो नीचे अपना नॉर्मल स्टाइल है 5% 8% डेप्रीसिएशन देने का। ओके, सेकेंड इफेक्ट ऑब्वियसली P&L अकाउंट में जाना पड़ेगा, तो हियर इट इज। एंड बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन जो थोड़े थोड़े यूनिक स्टाइल में था 2000, और फर्नीचर का जो नॉर्मल स्टाइल में था 3200, टोटल 5200। ओके, डू रिमेंबर उधर वो कमीशन मिसिंग है, बट वो कुछ अभी नहीं कर सकते हम लोग। ओके, हमको थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट को आने दो। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, प्रोवाइड इंटरेस्ट, मतलब कैलकुलेट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जस्ट अबाउट 2.5%। 2.5% मतलब 2.5 अपॉन 100। पार्टनर का कैपिटल किधर है? पार्टनर का कैपिटल अगर आप ध्यान दो, ओके, इट इज अबाउट 1,50,000 एंड 50,000। पार्टनर का पैसा, उसके ऊपर कोई भी पैसे पे, कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, बराबर है। अगर आप कहाँ पे 10 रुपया डालोगे, एटलीस्ट आप 1 रुपया तो कमाओगे, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। तो पार्टनर के लिए दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ इनकम बाय 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इफ यू से सर आई डिडंट राइट 2.5%, तो मैं बोलेगा टेंशन की बात नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिख लिया ना, हाँ वो चलेगा। कैलकुलेशन बराबर से कर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैलकुलेशन इधर बाय है, P&L में हम लोग 2 कर लेंगे, बट व्हाट इज द अमाउंट, क्योंकि अगर अमाउंट ही गलत है तो कोई मतलब नहीं है ये सब करने का। ओके, हाँ, सो वी कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूजिंग द फॉर्मूला कॉल्ड एज आर्ट। मितेश का हम लोगों को अलग से कैलकुलेट करना है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, एंड मंगेश का अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, क्योंकि दोनों का अमाउंट अलग है। मितेश का कैपिटल अमाउंट इज 1,50,000, 2.5 अपॉन 100 इंटू 12 अपॉन 12। कौन बोला 12 अपॉन 12? एक्चुअली किसी ने कुछ बोला नहीं, इसके लिए 12 अपॉन 12 लिया। बोलेंगे तो लेते थे 2 अपॉन 12, 10 अपॉन 12, 6 अपॉन 12, बोला नहीं तो 12 अपॉन 12। ओके, मंगेश का क्या, थोड़ा थोड़ा सेम, उसका बस कैपिटल अलग है। कितना है? 50,000। उसका भी 2.5% है, उसका भी 12 महीना है। देखो, नाउ यू कैन पॉज द वीडियो और आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बट हाँ बता देता हूँ मैं, 2.5 का पॉइंट निकाल लो, ये वाला पॉइंट। ओके, अगर मेरा हाथ जाता है वहाँ तक, हाँ, और क्या करो, नीचे डिनोमिनेटर में एक 0 डालो, दैट इज व्हाट यू डू। न्यूमरेटर में अगर आप डेसिमल के बाद, डेसिमल को निकालते हो और उसके बाद एक डिजिट है, तो इट बिकम्स 25 अपॉन 1000, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक 0 आएगा। अगेन, टेक्निक आपका कुछ भी हो सकता है, बट यू शुड गेट द आंसर्स एज 3,750, 1,250। अगेन, टेक्निक आपका, टेबल आपका कुछ भी हो सकता है। These are the answers. Okay, now I'll move on. You can आप pause कर सकते हो and you can always copy the entire calculation. मेरे लिए in the partners account, the first effect is about 3,750, 1,250, and because obviously तुमने दिमाग लगाया तो P&L अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट आएगा डेबिट साइड, क्योंकि उधर बाय था तो इधर 2 होगा, उधर इनकम है तो इधर एक्सपेंस होगा। मितेश एंड मंगेश टोटल 5,000, दैट इज द रीजन ना, इट्स अ लॉन्ग सम बिकॉज देयर इज, एंड इन वन ऑफ द लेक्चर्स आई हैव सेड कि अगर इस तरह का सम आता है, सम टीचर्स टीच द स्टूडेंट्स कि एक पेज पे ऊपर ट्रेडिंग नीचे P&L, वो होता रेयरली है, मतलब P&L इतना लंबा होना, बट अगर हो गया तो एक पेज में तो बिल्कुल नहीं फिट होगा, आप कितना भी कंजूसी कर लो। ओके, तो क्वाइट सिंपल है कि भाई
अगर रिक्शा में कोई एक हट्टा कट्टा जाके बैठ जाए तो बाकी लोग को तो तकलीफ होगी ही होगी। ओके, तो वो क्यों करना है? ओके, बड़ी गाड़ी में सवार होके चलने का। हाँ, तो उसी तरह बड़ी गाड़ी मतलब ट्रेन में, बस में आराम से बैठ के जाओ। हाँ, अपने लिए तो वही बड़ी गाड़ी है। हाँ, सो यू कैन प्रिपेयर दिस ऑन 1 पेज, तो आराम से फिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, गुड्स ऑफ 900। गुड्स कहाँ से लिया जाता है? फैक्ट्री से, गोदाउन से। वो टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज, घर का, घर वालों का यूज। कहाँ पे मंगेश गया था? वो ये गोदाउन में गया था, उसने पिकअप किया गुड्स। ओके, ले लिया उसने। गुड्स टेकन बाय मंगेश फॉर पर्सनल यूज, परिवार का यूज। 900, इसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। क्रेडिट में क्यों लिखा है यहाँ पे? बिकॉज इट इज क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, गुड्स, डिब्बा, माल चला गया। एंड द सेकेंड इफेक्ट इज ऑन द डेबिट साइड, ड्रॉइंग्स। तुम बोलेगा सर बट पहले से ही मंगेश का ड्रॉइंग है, तो क्या होता है? अगर मंगेश मालिक है बिजनेस का, बराबर, एंड यू गो एंड टेल मंगेश, हे मंगेश तेरी जरूरत कैसे हुई, हाउ डेयर यू टेक डू टू ड्रॉइंग्स। मंगेश कान के नीचे एक बजा के देगा, बोलेगा बिजनेस मेरा है, तेरे को क्या करना है? बराबर है, बराबर है। ओके, सो इफ यू गो एंड टेल अ पेरेंट, मम्मी डैडी, अपने बच्चे को ऐसा बड़ा करो, वैसा बड़ा करो, पेरेंट गुस्सा हो जाएगा, बोला तुमको क्या करना है, हमको पता है, हमारा बच्चा है, उसको कैसा सही रखना है, कितना डील देना है, क्या डिसिप्लिन, अनुशासन, हम देख लेगा। यस, कि उनके बच्चे हैं, तो उसी तरह। ओके, हाँ, तो ये हो गया। नेक्स्ट, राइट ऑफ 1000 एज बैड डेट एंड मेंटेन RDD at 3% on debtors. Now I'm doing this आगे पीछे, some of you would be sir हम स्क्रीनशॉट लेता है, तुम्हारा टकला आता है बीच में। प्लीज नोट, आफ्टर द चैप्टर कम्स टू एन एंड, पूरे चैप्टर की कहानी, ओके, सॉल्व्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव्स, सबका एक खूबसूरत PDF बनाया जाएगा और टेलीग्राम चैनल एंड वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट माई टकला गोइंग हियर एंड देयर। तुमको ये एकदम बराबर से नीटली पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में मिल जाएगा। ओके, सो लाइक चिंता मत करना। अभी के लिए तो 1000 एज बैड डेट, तो वो सॉल्व कर लेता हूँ, डेटर्स में से माइनस करो। अबाउट फर्दर बैड डेट्स, सम प्रोफेसर्स से 51,200. Second effect is in the Banno formula, right about 1000. 3% new RDD. Normally तो many times 5% आता है, but with 3% आया तो 3% कर लेते हैं। ओके, न्यू RDD and just here 1536 49664। ओके, सो here इधर और इधर, इसका सेकेंड इफेक्ट अपने बन्नो फॉर्मूला में, और फिर उसका आप आंसर बाहर डाल दो 2536। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग लुकिंग P&L, हैज मल्टीपल आइटम्स इन इट। अब तक वो कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आया। व्हाट आई डिड वाज द लास्ट एडजस्टमेंट। हाँ, मैंने सॉल्व नहीं किया, बट क्वेश्चन में वो लास्ट था। तो देखो, अभी हम लोग ये ग्रॉस प्रॉफिट सर्च कर सकते हैं। यस, डेबिट इज 99,000, क्रेडिट ज्यादा है 1,98,000। इनफैक्ट एकदम ये हाफ सेंचुरी है 99,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी उतना है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, आप लोग नोट कर लो 99,000। यहां से पिकअप करो, वहां पे लेके जाओ। प्लीज नोट, मंगेश का कान खड़ा हुआ जब उसको ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर सुनाई दिया, बिकॉज ना मंगेश ने स्पाई बग्स लगाए थे कहाँ पे? ट्रेडिंग में। द मूवमेंट जब पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, मेरे को मेरा कमीशन चाहिए। एक्चुअली नॉट जस्ट मंगेश, मितेश बोलेगा हमको भी तो चाहिए, दोनों को बोला था। ओके, तो ओके, मितेश को भी 1% देना है ऑफ 99,000 एंड मंगेश को भी देना है। जस्ट टू शो दिस टू यू, हाउ आर वी कैलकुलेटिंग कि बाबा ये जो 1% का ग्रॉस प्रॉफिट है ना, वो इज इट गिवन टू पार्टनर्स? वेरी सिंपल,
because if the gross profit is more, so 1% also becomes more. तो होता क्या है ना, it is a प्रोत्साहना, encouragement to the partners कि पार्टनर्स और मेहनत करो और जोश से काम करो. क्यों? क्योंकि तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो तुम्हारा 1% का कमीशन भी बढ़ेगा. तो पार्टनर को दिमाग में है, अच्छा सैलरी तो उतने का उतना ही रहता है, मेहनत करूँ कम करूँ ज़्यादा करूँ उतना ही पगार मिलता है, बट ये कमीशन अच्छी बात है. हाँ, मतलब मैं मेहनत करेगा अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा और मेरा 1% भी बढ़ेगा. यस, सो वेदर इट इज मितेश और मंगेश इन दिस प्रॉब्लम, मेनी टाइम्स जो सेल्समैन होते हैं ना, शोरूम में जाते हो ना आप, सेल्समैन आपको जूता बेचते, कपड़ा बेचते हैं, ओके, उनको ऐसा कहा जाता है कि देखो आप इतना बेचोगे इतना आपको कमीशन मिलेगा. तो फिर वो और जोश से अपना काम करते हैं और बेटर सर्विस अपने कस्टमर्स को देते हैं. ओके, सो दिस इज द कैलकुलेशन. दिस इज नॉट एन आर्ट फॉर्मूला. ये कोई 2 महीने का मेहनत नहीं है, ये कोई 4 महीने का मेहनत नहीं है. ओके, इसमें कोई टाइम आता नहीं है. तो both the partners I will give 990 because that is what is 1%. Outer column 1980. Now don't forget the second effect, क्योंकि अगर भूल जाओगे तो टोटल नहीं हो पाएगा. Right above 990 990. Okay, so I just point it out if you are thinking sir कहाँ पे लिखा आपने ये. Okay, commission. So अब क्वेश्चन में सोल्यूशन ऑलमोस्ट मैं ख़त्म कर देता हूँ. द डेबिट टोटल, बहुत लंबा स्टोरी था, 35,316, बहुत लंबा स्टोरी था, बट स्टिल क्रेडिट का पलड़ा भारी है, 99,000. द प्रॉफिट दैट यू गेट, नेट प्रॉफिट 63,684. वी कॉल इट नेट प्रॉफिट. मितेश मंगेश आर द पार्टनर्स, उनके दोनों के प्लेट में बट जाएगा. रेशो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं आपको याद दिला दूं, 3:1. वो तो फर्स्ट लाइन में बोल दिया था उन लोगों ने. ओके, लेट्स गो टू द कैलकुलेशन. 3/4, 1/4. कितना आता है एक्चुअली? एग्जैक्टली डेसिमल में भी नहीं आता, एग्जैक्टली 47,760. थोड़ा अजीब अमाउंट है बट दैट इज हाउ यू गेट ना. तो अकाउंट्स करोगे थोड़ा मैथ्स में भी इम्प्रूवमेंट तो आ ही जाता है. 1591. ओके, अगेन रुकता हूँ, कॉपी कर लो, बिकॉज हैव टू पिक दिस अप एंड टेक इट टू द क्रेडिट साइड. सो आई डू दैट राइट नाउ. राइट अबाउट नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, बोथ द पार्टनर्स. मितेश का टोटल कर लेता हूँ क्लोजिंग बैलेंस, मंगेश का टोटल कर लेता हूँ क्लोजिंग बैलेंस. एंड प्लीज नोट इट इज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट. कैपिटल तो कब का, एंड कैपिटल इज फिक्स्ड, टच मी नॉट, उसको तुम हाथ नहीं लगा सकता है. सो द क्रेडिट टोटल इज 55,503, माइनस करने के बाद 54,303. फॉर मंगेश 21,661, माइनस करने के बाद 17,061. दैट इज करंट अकाउंट का क्लोजिंग. कहाँ पे लिखने का? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ऊपर डेबिट है, ऊपर डेबिट है और लाइबिलिटी क्रेडिट. ओके, मितेश मंगेश 54,303, 17,061 एंड टोटल 71,364. देयर इज नथिंग, कुछ नया नहीं है मुझे यहाँ पे पढ़ाने, एटलीस्ट ये जो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमने वो किया है. ओके, इसके लिए मैं थोड़ा गाड़ी फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ पे टाइम मुझको देना है, आई गिव मोर देन दैट. 2 मिनट की एक्सप्लेनेशन की जगह पे मैं उसको 10 मिनट का कर देता हूँ, टू मेक श्योर दैट आपको कॉन्सेप्ट समझा. बट प्लस माइनस में आई कैन से देख, तो ऐसा करेगा तो ऐसा आंसर आएगा, वैसा करेगा, ऐसा वैसा आंसर नहीं आता, एक ही आंसर आता है. द टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड 3,30,364, 3,30,364. Okay, again, this particular lecture was even conducted in a different form on Google Meet. Okay, but that was more just to answer your queries. Right now, neatly display कर दिया, and I hope everything is visible and understood by you. अगर आपको ये हमारी पूरी कहानी आज की पसंद आई, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए.
अपने दोस्तों तक ये चैनल के बारे में बता दीजिए। काफ़ी लोग जो यूट्यूब का एनालिटिक्स है हमको ये बोलता है कि करीबन अराउंड 40% ऑफ पीपल देखते तो है लेक्चर्स बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट वुड बी ऑफ अ बिग हेल्प, हमारे लिए बड़ी बड़ी मदद होगी। ओके, कोई डाउट रहेगा, शंका होगा, सजेशन रहेगा, सुझाव रहेगा, कमेंट बॉक्स का उपयोग आप उसके लिए कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि जो भी लेक्चर्स अपलोड होते हैं या लाइव कंडक्ट किए जाते हैं, जो नोट्स शेयर होते हैं, उसकी जानकारी आपको हमेशा बनी रहे। ओके, दैट इज़ इट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।